So next important colligative property of a solution is osmotic pressure. First of all, we discuss what is osmosis. Can anyone tell, because you have already done this term osmosis in lower classes, in 9th and 10th, and moreover medical students so must have done in bio syllabus as well. Can anyone tell about something about osmosis, or wherever you observe in your daily life, कोई daily life phenomena बता सकते हो जहाँ हम osmosis को observe करते हैं? Unmute yourself and tell. Somewhere in your surroundings where you see osmosis is taking place, or the changes are taking place due to osmosis. Hurry up. Medical students so must be knowing. Rather, it's a very simple process. Everybody must know. Unmute yourself and tell. Ma'am, flow of solvent from higher concentration, from less concentration to higher concentration through semi-permeable membrane. Very good. If two solutions are separated, suppose ये solution A है and here we have solution B. सेम सोल्यूट के दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को अगर हम उसकी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं. SPM is semi-permeable membrane, and when these two solutions of different concentration are separated by this semi-permeable membrane, then what happens? Suppose इस solution में solute की concentration lesser है and here concentration of solute is higher. See, I am writing for concentration, means this is a dilute solution, you can say, and this is concentrated solution. Clear? Now what happens? एक spontaneous flow होता है because ये semi permeable membrane जो है it is permeable only for solvent molecules. Water molecules specifically, they are permeable through this semi permeable membrane, means only the water molecule can flow from this solution to this. Solute particles which are larger in size, they are not allowed to pass through this permeable membrane. Then what happens? Water molecules will migrate toward this side as well as this side. अब होता क्या है, ऐसे तो ऑस्मोसिस दोनों डायरेक्शन में चलता रहता है, मतलब ये जो स्पॉन्टेनियस फ्लो है वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो इट विल टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन. बट एक्चुअली जो नेट हमें मिलेगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन वो मिलता है जिस तरफ वाटर की अपनी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से वो उस तरफ नेट फ्लो करेगा जिधर वाटर कम है. वाटर कम होने का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होगा उसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा, वाटर कम होगा. तो वाटर और सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम डाइल्यूट solutions to concentrated solutions through a semi-permeable membrane, and this net flow of solvent molecules towards more concentrated solution is known as osmosis. And many daily life phenomena are associated with osmosis. बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, आप अपने घर में वेजिटेबल्स लेके आते हो, इवन मार्केट में भी देखते होंगे आपके ये जो वेजिटेबल सेलर्स हैं, दे कीप ऑन स्प्रिंकलिंग वाटर in summer especially on vegetables. बहुत ज्यादा थोड़ी मतलब water sprinkle करते रहते हैं. The reason is that in summers most of these vegetables and fruits they lose moisture, और वो उनकी जो एक टर्जिडिटी होती है, एक प्रेशर होता है, या एक तरह की आप कह दो कि फॉर्मनेस होती है उन चीजों में, जैसे कैरेट होगी या कोई भी वेजिटेबल्स, लेडी फिंगर, आप कुछ भी देख सकते हो, फॉर्म होती है वेजिटेबल्स जब फ्रेश होती है. बट एज दे स्टार्ट लूजिंग वाटर ड्यू टू हीट, सो दे बिकम लिम्प. तो ये जो वापस उनमें फॉर्मनेस लाने के लिए उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करते हैं वेजिटेबल सेलर्स. तो रीजन क्या है उसका कि जैसे ही आप कोई वेजिटेबल को वाटर में रखती हो तो वो अपनी फॉर्मनेस दोबारा गेन कर लेती है. रीजन, वाटर उसके अंदर एंटर हो जाएगा बिकॉज इट हैज ऑलरेडी लॉस्ट वाटर. तो उसके अंदर जो सेल सैप है, जो साइटोप्लाज्म है सेल्स का, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है. तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है. बट ये डेवलप कब होता है, मतलब कब होगा, अगर एक सॉल्यूशन को, किसी एक सब्सटेंस को किसी ऐसे सॉल्यूशन में या किसी इस तरह के एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है जहां उसके अपनी साइटोप्लाज्म की कॉन्सेंट्रेशन बाहर एटमॉस्फेयर में जो भी कॉन्सेंट्रेशन चल रही है उससे डिफरेंट होगा. अगर देन दिस विल स्टार्ट. एक इंडिविजुअल सॉल्यूशन अकेला आपने एक बीकर में रखा हुआ है,
it will never have any osmosis process or neither any osmotic pressure. अब क्या होता है देखो, जब सपोज आपने ग्रेप्स का एक्सपेरिमेंट 9th क्लास में भी किया होगा कि जब आप रेजिन्स को वाटर में रखते हो तो रेजिन्स स्वेल अप, ठीक है, वो स्वेल अप हो जाएंगे और स्वेल होने से क्या होगा, उनके अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है। तो एक वाटर की एंट्री से क्या होता है, सेल्स के अंदर प्रेशर आता है, वो उनकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर डालता है वाटर। तो दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर which is developed in a particular solution or a living cell, this is known as, एक्चुअली उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं, अदरवाइज द बेसिक टर्म इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है। अब हम इसको मेजर कैसे करेंगे कि किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो सकता है। अब आप इमेजिन करो, सपोज ये दो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि ए वाला जो है वो डाइल्यूट है, बी जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो नेट फ्लो ऑफ मूवमेंट जो वाटर का रहेगा वो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ रहेगा। मींस वाटर विल मूव फ्रॉम दिस सॉल्यूशन टू दिस सॉल्यूशन, और ये तब तक चलता रहेगा प्रोसेस जब तक दोनों जगह वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाती, मतलब दोनों सॉल्यूशंस इक्विलिब्रियम पे जब आ जाएंगे उस टाइम पे ये नेट ऑस्मोसिस जो होगा वो जीरो हो जाएगा। मींस जितने वाटर मॉलिक्यूल इधर एंटर हो रहे हैं उतने ही वहां से वापस भी आएंगे, तो इक्विलिब्रियम गेट्स एस्टैब्लिश्ड आफ्टर सर्टेन टाइम। बट सपोज अब हमने इन दोनों सॉल्यूशंस को एसपीएम से सेपरेट किया और अगर हम देख रहे हैं कि इस तरफ सॉल्यूशन की सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की एंट्री हो रही है, तो यहाँ पर लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और आप इजीली दो कंपार्टमेंट में लेवल का डिफरेंस देख सकते हो। बट इफ वी अप्लाई अ प्रेशर, हमने पिस्टन से इस तरफ सॉल्यूशन में जहां एंट्री चल रही है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, उस एंट्री को स्टॉप करने के लिए अगर हम कोई प्रेशर लगा दें पिस्टन से, इसको प्रेशराइज कर दें सॉल्यूशन को, देन व्हाट हैपन, ये एंट्री जो है सॉल्वेंट की जिस पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू के लिए बंद हो जाएगी। मींस टू प्रिवेंट दिस एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इफ वी अप्लाई एन एक्सटर्नल प्रेशर, तो दैट amount of external pressure which is required to stop this entry of solvent molecule is known as osmotic pressure. किसी भी सॉल्यूशन पे अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा के उसमें नेट ऑस्मोसिस जो है उसको जीरो कर दे, मतलब नेट कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसफर आपको विजिबल नहीं होगा, सॉल्यूशन का लेवल फर्दर राइज नहीं होगा, तो दैट एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ अब एक चीज और इमेजिन करो, एक पर्टिकुलर प्रेशर आपने P1 लगाया, इस P1 प्रेशर पे ऑस्मोसिस बंद हो गया, मतलब दोनों तरफ अब कोई आपको नेट ऑस्मोसिस नहीं मिल रहा, मतलब कहीं भी सॉल्यूशन का लेवल राइज नहीं हो रहा। बट आफ्टर अब आप इसको और इंक्रीज कर दो, P1 से हमने इंक्रीज कर दिया P1 प्लस P, सपोज P2, एक न्यू प्रेशर लगाया जो काफी हाई अमाउंट में प्रेशर था। देन व्हाट विल हैपन, इतना प्रेशर जब आप इस पे लगा दोगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल वो फ्लो करके सॉल्यूशन, मतलब रिवर्स हो जाएगा प्रोसेस कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास हो जाएंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ये मैं आपको साथ ही अभी इसलिए बता रही हूँ कि अलग से टॉपिक है बुक के अंदर कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस नॉर्मली क्या है, मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ solvent molecules from a dilute solution towards concentrated solution, and if we want to prevent this spontaneous movement of water, we need to apply a particular pressure. So that amount of external pressure which is to be applied on a solution side to prevent the entry of solvent, सॉल्वेंट की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए जो सॉल्यूशन पे हम प्रेशर लगाते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और सपोज अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से एक्सीड कर दें, एक एक्सेसिव प्रेशर उस पर लगा दें, then what happens, water molecules will start leaving that particular solution जिस पे आपने वो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया हुआ है, and they will transfer to the dilute, towards the dilute solution जिससे उसको सेपरेट करके रखा हुआ है, and this phenomena is known as reverse osmosis। ठीक है, उल्टा ऑस्मोसिस हो जाएगा, जो नॉर्मली उसकी डायरेक्शन नहीं थी उसके रिवर्स डायरेक्शन में। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना व्हिच इज नाउअडेज यूज्ड टू ऑब्टेन ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर फ्रॉम सी वाटर। कुछ कंट्रीज ने स्टार्ट कर दिए हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बहुत सारे प्लांट, जहाँ पे जो कोस्टल रीजन में है, मतलब सी वाटर में से प्योर
पोर्टेबल वाटर को सेपरेट कर सकते हैं हम बाय यूजिंग रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग थोड़ा, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर लगाना पड़ता है सोल्यूशन साइड पे, तो इतना प्रेशर को बेयर करने के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अदरवाइज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हमारी जो सेल्स है इंडिविजुअल, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी एसपीएम होती है नेचर में, बट आर्टिफिशियली सिंथेटिकली दे आर प्रिपेयर्ड यूजिंग सर्टेन केमिकल्स नेम्ड एज सेल्यूलोज, xanthate, सेल्यूलोज xanthate और सेल्यूलोज acetate. These two substances are used to prepare semi-permeable membrane for reverse osmosis. Otherwise, normally osmosis can take place through these natural SPM. जैसे नेचुरल एसपीएम में पिग जो है, एनिमल पिग का ब्लैडर जो है, उसको यूज किया जाता है ये बनाने के लिए, और पार्चमेंट, आपने नेम सुना होगा पार्चमेंट पेपर, उसको यूज करते हैं। आर्टिफिशियल सेल्फिन शीट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस तरह की मेम्ब्रेन से जब आप दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को सेपरेट करके रखोगे, देन ऑस्मोसिस टेक प्लेस। ये चीज याद रखो बेटा, सॉल्यूशन अकेला सिंगल है, कोई ऑस्मोटिक प्रेशर एज सच उसमें आप फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब उसमें ऑस्मोसिस ही नहीं होगा, क्योंकि वो सिंगल, बिना किसी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आपने अभी वहां पर सेटअप नहीं किया। व्हेन इट इज सेपरेटेड और व्हेन इट इज केप्ट विद अ सॉल्यूशन having somewhat different concentration, and both of these solutions must have a separation boundary of SPM. अगर आपने सपोज करो एक बीकर है, बीकर में आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा हुआ, ठीक है, उसमें सपोज कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, अब आपने उसमें वाटर ही सपोज करो कि ऐड कर दिया, अभी कोई सेपरेशन नहीं, आपने सिंपल वाटर ऐड कर दिया, धीरे धीरे वाटर अपने आप मिक्स हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन भी स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बट उसमें एसपीएम की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट डिफ्यूजन थ्रू एसपीएम इज एक्चुअली ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। जितने प्लांट्स जो है वो वाटर जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनकी रूट्स से जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, दैट इज आल्सो ऑस्मोसिस। स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग आल्सो बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर सेल्स में जब बिल्डअप होता है तो सेल्स टर्जिड हो जाती हैं, और जब आप when these living cells they lose water, तो उनका टर्जिड प्रेशर या टर्जिडिटी जो है वो कम हो जाती है, वो लिम्प होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज ऑल यू कैन से डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ऑस्मोसिस का एग्जांपल जो हम डेली लाइफ में देख सकते हैं, दैट इज जब इंट्रावेनस कुछ इंजेक्शंस जो लगते हैं, मतलब ऐसे इंजेक्शंस जो डायरेक्टली पूरा इंजेक्ट नहीं होता मेडिसिन, लाइक उसको एक ड्रिप के थ्रू लगाया जाता है, तो उसमें जो फ्लूइड होता है बॉटल में, जिसको हम नॉर्मली ग्लूकोज कह देते हैं, एक्चुअली इट इज नॉट एट ऑल ग्लूकोज, दिस इज 0.9%, 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है, जिसको हम सलाइन वाटर भी कह सकते हैं। तो ये जो सलाइन वाटर है, दिस इज यूज्ड फॉर इंजेक्शंस, जो ड्रिप्स के थ्रू इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, and this concentration is very much required because 0.9% NaCl का solution हमारी cells के साइटोप्लाज्म, जो हमारी ब्लड के अंदर, आप कह दो कि आइस एक तरह का कंसंट्रेशन ये रहता है। अगर हम इससे ज्यादा कंसंट्रेशन वाला फ्लूइड बॉडी में पास कर देंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी की सेल्स में से वाटर लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर इससे कम कंसंट्रेशन, मतलब से डाइल्यूट सॉल्यूशन के थ्रू इंजेक्ट करेंगे बॉडी में कोई मेडिसिन, तो सेल्स विल स्टार्ट, यू कैन से, मतलब स्वेल अप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट नेट ऑस्मोसिस ना हो, बॉडी की सेल्स के साइटोप्लाज्म की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज ना आए, उसके लिए हमें जो इंट्रावेनस इंजेक्शंस लगाने होते हैं वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ वाली सॉल्यूशन में हम यूज करते हैं। तो दिस इज ये ऑल जो जितने भी डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, दे आर गिवन इन योर बुक इटसेल्फ। जैसे इसमें से कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ऐसे दो सॉल्यूशंस जिनको एक साथ रखने पर नेट ऑस्मोसिस ऑब्जर्व नहीं होता, दो सॉल्यूशंस आर नोन एज आइसोटोनिक। ये टर्म्स भी बेटा आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हैं। अगर दो सॉल्यूशंस हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है, सॉल्यूट सेम है, सपोज जैसे हमने अभी यहाँ डिस्कस किया था A to B, A अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक, और हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक।
तो हाइपो, हाइपर और आइसोटोनिक हम टर्म कब यूज करते हैं? व्हेन टू सॉल्यूशंस हैव एग्जैक्टली सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन, तब उनमें नेट ऑस्मोसिस नहीं होता। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में अगर एक सेल को आप रखोगे तो क्या होगा? सेल विल स्वेल अप। हाइपरटोनिक में अगर हम रखते हैं एक सेल को तो सेल विल श्रिंक। बट व्हेन द सेल्स आर केप्ट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस देन नो नेट ऑस्मोसिस टेक प्लेस, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में सेम अमाउंट में ऑस्मोसिस होता है, तो सेल की साइज पे कोई फर्क नहीं आता। क्लियर? तो सेल का जो अपना एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो चेंज नहीं होता। तो एनी डाउट इफ यू हैव रिगार्डिंग ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या है, उसकी डेफिनेशन, कितने टाइप का है, एंडो एंड एक्सो ऑस्मोसिस। उसकी वैसे एंडो और एक्सो की एज सच आपको कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऑस्मोसिस क्लियर होना चाहिए। और ऑस्मोसिस के बेस पे ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या, एंट्री ऑफ सॉल्वेंट को प्रिवेंट करने के लिए जो हम प्रेशर लगा रहे हैं दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। थोड़ा सा इसको डेफिनेशन लिखूं पहले। ऑस्मोसिस, राइट इन योर नोटबुक्स। Osmosis is a spontaneous movement of solvent molecules, ब्रैकेट में वाटर भी कर सकते हो, solvent molecules from a dilute solution towards a concentrated solution, from a dilute solution towards a concentrated solution through semi-permeable membrane. Next, write osmotic pressure. Osmotic pressure. The hydrostatic pressure produced by column of water, और solution भी कर सकते हो, solvent भी लिख सकते हो। It can also be defined as the external pressure applied on a solution to prevent the entry of solvent molecules. External pressure applied on a solution to prevent the entry of solvent particles through SPM when it is separated by a semi-permeable membrane, kept with a solution or solvent, kept with a dilute solution or solvent, kept with a dilute solution or solvent.
जब दो सॉल्यूशन अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले हैं, आपने उनको सेपरेट किया हुआ एसपीएम से, तो जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उसकी तरफ एंट्री होगी हमेशा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की नेट एंट्री जो होगी, ठीक है। अदरवाइज तो दोनों तरफ चलता है प्रोसेस। तो उस नेट एंट्री को स्टॉप करने के लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की साइड पे जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा सकते हैं, उस एंट्री को बंद करने के लिए, सॉल्वेंट की एंट्री को, उस एक्सटर्नल प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। Is called as, or it is equal to the osmotic pressure. Next, right, osmotic pressure is a colligative property. अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे, वाज प्रूव्ड बाय वॉन हॉफ, एक्सपेरिमेंटली उसने वेरिफिकेशन किया था, एंड अकॉर्डिंग टू वॉन हॉफ इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको उसने सिंबलाइज किया पाई से, पाई जो आप मैथ्स में सिंबल यूज करते हो, तो दिस ऑस्मोटिक प्रेशर is used by the symbol pi, and Von Hoff experimentally found that this pi is directly proportional to the concentration of the solution, and this concentration is taken in the terms of molarity. ठीक है, तो Van Hoff experimentally proved this thing that pi is directly proportional to molarity or the concentration of the solution, and he also proved that pi is directly proportional to the temperature at which the solution is kept. ठीक है, जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जाओगे उतना ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो ये दो वेरिएबल्स ऐसे हैं जिसपे डायरेक्टली रिलेट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इफ वी अप्लाई और कंबाइन दीज, you can write that pi is directly proportional to Ct और pi is equal to Rc। और यहाँ R जो इसने कांस्टेंट यूज किया था, दिस R इज इक्वल टू, एक्चुअली ये वैन हॉफ और बॉयल्स की जो बॉयल्स ने जो गैस लॉज दिए थे, उन लॉज मतलब उन्हीं साइंटिस्ट के साथ वैन हॉफ ने वो सारे जो फॉर्मूले थे या लॉज थे वो सॉल्यूशंस पे अप्लाई किए, एंड ही फाउंड दिस सॉल्यूशंस के लिए जहां हम नॉर्मल गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर टर्म यूज करते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होता है, या वट एवर जो भी हमने वहां पर पढ़ा है गैसेस के लिए लॉज, सेम वही लॉज अप्लाई होते हैं सॉल्यूशंस में जब वो डाइल्यूट होते हैं। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम जितनी भी पढ़ रहे हैं, ये सॉल्यूशंस आइडियल सॉल्यूशंस पर अप्लाई होती है, एंड दीज सॉल्यूशन मस्ट बिहेव और मस्ट बी डाइल्यूट, यू कैन से। बहुत ज्यादा सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पे आप ये फॉर्मूले या लॉज अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऑल दीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर calculated and experimentally proved for very dilute solutions, approximately lesser than 5% concentration, then only you can apply it. So for a dilute solution, pi is directly proportional to C and T, and जब हम proportionality sign हटाते हैं, we get a constant R, which is actually gas constant, जो हमारा universal gas constant है, उसी की वैल्यू के इक्वल, मतलब वही वैल्यू आपने पुट करनी है। जनरली हम जिस यूनिट में ऑस्मोटिक प्रेशर बार में, एटमॉस्फेयर में, जिसमें भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, अकॉर्डिंगली यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ आर ओवर देयर, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू CRT, जैसे अगर आपको याद हो, इसको हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू N ओवर VRT। N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है, ये उसकी मोलारिटी हो गया। वॉल्यूम अगर लीटर में हम ले रहे हैं तो दिस विल बी द मोलारिटी RT। अगर आपको याद हो बेटा, गैसेस के लिए जो हमने लॉ किया था nRT ओवर V, या आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो ये भी पाई V इज इक्वल टू nRT। तो यू कैन से दैट वैन हॉफ इक्वेशन जो है वो डिराइव हुई है गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से, एंड दिस इज नोन एज आइडियल इक्वेशन फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। Pi V is equal to nRT. This is ideal equation for gases. PV is equal to nRT. ठीक है, अब यहाँ पर बस डिफरेंस क्या है, this P is partial pressure of gases or normal pressure of a gas, and this is osmotic pressure of a solution. Clear? N number of moles of solute, volume of solution in liters, R gas constant,
T, temperature in Kelvin, बाकी सारी चीजें आपको पता है, सिर्फ आपको एक न्यू टर्म जो यहाँ पे पाए, this is osmotic pressure. And as from this equation, it is directly you can see that R constant है, temperature जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी एक particular temperature का हम solution ले रहे हैं, तो that will also be constant. Volume हम suppose 1 liter ले रहे हैं, तो variable यहाँ पर क्या हो सकता है एक solution में, number of moles of solute. तो pi is directly proportional to number of particles of solute. Hence, it is a colligative property. First, you write these formula, then write this as R, T and V. R, T and V are constant. R, T and V are constant. Hence, pi is directly dependent on, hence pi or osmotic pressure is directly dependent on number of particles of solute, number of particles of solute. Hence, it is a colligative property. Hence, it is a colligative property. अब आपको पता बेटा, मैंने कल से आपको बताया था, जो बेसिक एप्लीकेशन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेली लाइफ में, वो है कि इन प्रॉपर्टीज को हम कैसे यूज कर सकते हैं एक अननोन सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स WB ओवर LB. ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दोगे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए, अगर आप यहाँ LB करते हो. ठीक है, B is for solute, always consider this. So pi will be equal to WB over MB B RT, and MB अगर हम फाइंड करना है हमें, तो that will be equal to WB RT over pi. B यहाँ पे बेटा लीटर्स में लेना है आपको, ये याद रखना. ठीक है, so this is what your formula for calculations of molecular mass for you can say osmotic pressure properties हम कैसे निकाल सकते हैं. For example, in a question, osmotic pressure of the solution is given and you need to find out the molecular mass of solute. So you can apply this equation. So this is equation number first. इसको कर लो second and write it as third. ठीक है, these three equations can be used. अगर आपको डायरेक्टली मोलैरिटी गिवन है, पाई पूछा है, तो सिंपली इक्वेशन लगा दो. नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, then apply this formula. And if it is asked to find molecular mass of solute and solute का mass given है, वॉल्यूम गिवन है, R and T, T will be given in the question. R जो है आपको खुद ही अप्लाई करना पड़ेगा देख के कि किस यूनिट में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू गिवन है. ओके, नेक्स्ट राइट रिवर्स ऑस्मोसिस. Numericals will take up tomorrow. First you write reverse osmosis. आपने अपने घर में भी जो फिल्टर्स देखते हो ना, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, RO. RO इज एक्चुअली अ टर्म, रिवर्स ऑस्मोसिस. ये जो बेसिक फिल्टर्स हमारे घर में हम डोमेस्टिकली यूज कर रहे हैं, दे आर बेस्ड ऑन दिस फिनोमिना. उसमें हम जो नॉर्मल वाटर जो सप्लाई से आ रहा है मतलब आपके घर में, उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट्स होते हैं, तो उसको डीसैलाइनेशन कर रहे हैं हम एक्चुअली. तो डीसैलाइनेशन ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन पोर्टेबल वाटर इज द बेसिक प्रिंसिपल. इज व्हाट, हियर द प्रेशर more than osmotic pressure is applied on that solution. So write down definition. We have already discussed now. Definition लिख लो. If pressure greater than osmotic pressure, if external pressure greater than osmotic pressure is applied on solution side, on solution side, when it is separated by solvent through SPM,
the net flow of solvent molecules, the net flow of solvent molecules will take place from a concentrated, from solution side towards solvent side, from solution side towards सॉल्वेंट साइड, क्योंकि हम यहाँ सॉल्वेंट नॉर्मली जो किया जाता है वो यही होता है कि एक तरफ प्योर वाटर रख देते हैं और उस पूरा जो अपरेटस बनाया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए, और एक तरफ उसमें होता है सलाइन वाटर। तो सलाइन वाटर से जितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो प्योर वाटर की तरफ अपने आप, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस, ओके, फ्रॉम सॉल्यूशंस टू solvent side or from concentrated solution to dilute solution through SP. This is known as reverse osmosis. This phenomena or this process is used in desalination of seawater, desalination of seawater, in order to obtain potable water. बस इसकी डेफिनेशन ही करनी है रिवर्स ऑस्मोसिस की, और एप्लीकेशन क्या है, बस पोर्टेबल वाटर के लिए इसको यूज कर रहे हैं, वाटर को डीसलाइन करने के लिए, सी वाटर को। अदरवाइज जो नॉर्मल स्मॉल स्केल फिल्टर्स हैं, दे आर आल्सो बेस्ड ऑन आरओ, आयन एक्सचेंज फिल्टर्स भी आते हैं, आरओस भी आते हैं, बोथ टाइप फिल्टर्स यू कैन हैव, ओके। तो दिस इज अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। एक टॉपिक अब आपको चैप्टर में बचा है, दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस एंड वांट ऑफ फैक्टर, दैट विल डिस्कस टुमारो। आज कुछ न्यूमेरिकल्स में फिर होमवर्क में दूंगे, आप ट्राई करो बेटा, जितने न्यूमेरिकल्स ट्राई करते जाओगे जो प्रॉब्लम्स होंगी दैट आई विल टेक अप। कल छोटा सा ही है वो टॉपिक, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक यू कैन आस्क, एंड फ्यू डेली लाइफ ऑब्जर्वेशंस एंड एग्जांपल्स आर आल्सो गिवन इन दिस टॉपिक दैट यू कैन आल्सो टेक, मतलब आप अपने आप पढ़ सकते हो, वो मैंने थोड़ी बहुत जो डिस्कस की है अभी। एक है उसमें कि when fruits and vegetables are sprinkled with salt, जैसे आपने घर में पिकल्स, मैंगो पिकल जब बनाते हैं नॉर्मली व्हाट वी डू, उसके ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल करके थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देते हैं कट करने के बाद, मैंगो राइप जो मैंगोज हैं आपके, तो रॉ मैंगोज को पिकलिंग करने से पहले, तो दैट इज बिकॉज ऑफ क्या होता है, उनको सॉल्ट स्प्रिंकल करने से जो एक्सेस मॉइस्चर है दैट कम्स आउट। और वहां क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने बाहर उसकी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड किया सॉल्ट की फॉर्म में, ठीक है। और इनसाइड जो मैंगोज की सेल्स के अंदर सेल सैप है, उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसमें जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो उतनी ज्यादा नहीं है, तो नेट ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस फ्रॉम मैंगोज टुवर्ड्स सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स में क्या है, बहुत सारा सॉल्ट आपने डाला है, एंड दिस इज, उसमें से मॉइस्चर बाहर आने से क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो चीजें खराब नहीं होती जब उसको सॉल्ट या शुगर से प्रिवेंट किया जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। तो वो होता क्या है, सॉल्ट एंड शुगर एज अ प्रेजर्वेटिव यूज हो रहे हैं, तो वहां पे प्रेजर्वेटिव क्यों है वो, क्योंकि इस तरह के सॉल्ट और शुगरी एटमॉस्फेयर में बैक्टीरियल सेल भी अगर ग्रो करती है तो वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनकी सेल से भी सारा जो सेल सैप है उसमें से वाटर बाहर आ जाता है, तो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करने का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, शुगर एंड सॉल्ट, दीज कैन कॉज एक्सोऑस्मोसिस इन लिविंग सेल्स, ठीक है। तो इसको आप प्रिजर्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, और स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ओवर स्टेल वेजिटेबल्स, पुरानी जो मतलब फ्रेश नहीं है उनको वापस फ्रेशनेस ला सकते हो आप। अपने घर में फ्लावर्स कई बार डेकोरेट करते हो प्लग करके प्लांट से, तो फ्लावर्स को अगर हम वाटर में रखते हैं तो काफी टाइम तक वो फ्रेश रहते हैं, तो दैट इज बिकॉज एंडोऑस्मोसिस टेक प्लेस। तो एंडोऑस्मोसिस से एक वो टर्जिडिटी या प्रेशर बिल्डअप होता रहता है सेल्स में। और एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैंने आपको बताई, जो इंट्रावेनस इंजेक्शंस अप्लाई होते हैं मेडिसिनल मतलब इंडस्ट्री में, वो 0.9% सलाइन वाटर से ही अप्लाई किए जाते हैं, बिकॉज 0.9% सोल्यूशन इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सोल्यूशन की डेफिनेशन बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर की टर्म में भी आप ये भी एक डेफिनेशन नोट कर लो, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, two solutions or solutions having similar concentration, solutions having similar concentration and
सिमिलर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कॉन्सेंट्रेशन C सेम हुआ, सेम टेम्परेचर पे पड़े हैं सपोज रूम टेम्परेचर पे, तो दोनों सेम अमाउंट में ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करेंगे इररेस्पेक्टिव कि उनके अंदर सॉल्यूट क्या है। यही एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन, कि वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती प्रॉपर्टीज, दे डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ